Hello, Bache, good evening. This is lecture 4 today of the topic complex number. Today, just we are going to start Argand plane, that is also known as complex plane and also known as Gaussian plane. Okay, बच्चे, so आज देखेंगे अपन का complex plane देखेंगे, Argand plane देखेंगे. So here, this is a circle, my dear. A circle है. Just draw a point on this circle. This point P of x y. This is x-axis. It is y-axis. So x-axis is known as real axis. X-axis is known as real axis. However, y-axis is known as imaginary axis. Imaginary axis. So draw perpendicular P to M on x-axis. बच्चे यहाँ क्या करना? OP. It is OP, O to M, M to P. So vector OP is what? It is OM plus MP. Okay. So it is Z equals to X plus IY. It is Z equals to X plus IY. Direct, in case of y axis, we have to take direction also. So this is imaginary axis. So I of y. Okay. Where this means iota. This means iota. इसे बोलेंगे I इक्वल्स टू रूट अंडर -1. सो आई स्क्वायर विल बी -1. I क्यूब इक्वल्स टू -I and I4 equals to 1. Finally, I to the power 4n. This equals to 1. Right now, so this equals to 1. Now, listen here. Listen here. This is the point Z. Again, this point is here. This point is Z. So this point is Z bar. This is the Z conjugate. And similarly, it is Z bar. So Z bar means X minus IY. It is Z conjugate. It is Z conjugate. So Z bar is what? Z bar is what? X plus IY into X minus IY. So finally this will be X square plus Y square. And finally this will be mode of Z square. Right? So this is the mode of Z square. Listen बच्चे. So here it is theta. Here it is theta. थीटा मान लो बच्चे. तो यहाँ से लिखोगे साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया y अपॉन r. Y अपॉन r. एंड कॉस थीटा इट इज x अपॉन r. लिसन. अब क्या करने का बच्चे? x की बात करोगे तो x अपने पास क्या हो गया? x अपने पास हो गया r cos थीटा. एंड y अपने पास हो गया r sin थीटा. x हो गया r cos थीटा. y हो गया अपने पास r sin थीटा. सो r इज व्हाट? r स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. r so r is what? r is mode of z. So it is r means mode of z, and this is root under x square plus y square. So this is mode of z equals to root under real part का square plus imaginary part square. Real part square plus imaginary part square. Right now, so this is r बच्चे again. So z equals to x plus iy. So z equals to now tan theta. Now it's a tan theta. So tan theta will come up y upon x. So theta is what? Theta is tan inverse. Just take modulus mode of y upon x. It give direction. Modulus means डायरेक्शन देगा बच्चे. अब यहाँ से लिखो क्या? ये हो गया आपका आर्गुमेंट. आर्गुमेंट z. इट इज एम्पलीट्यूड z एंड इट इज नोन एज थीटा. आर्गुमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं आप क्या? आर्गुमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं आर्गुमेंट z ARG और AMP. एम्पलीट्यूड z. इट इज थीटा एंड थीटा इज व्हाट? इट इज tan इनवर्स. It is tan inverse mode of y upon x. This one. अब थीटा क्या करना बच्चे? लिखते हैं क्या? आर्गुमेंट इज टेकन एज प्रिंसिपल वैल्यू. Argument is taken as principal value.
आर्गुमेंट इज टेकन एज प्रिंसिपल वैल्यू एज -π to π। आर्गुमेंट हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, -π to π के बीच लेते हैं। आर्गुमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से हो क्या गया बच्चा, देखो तो कोई पॉइंट रहेगा अपने पास, ये अपने पास ऐसे लाइन आ गया, ये देख बच्चे इसको ऐसे करोगे, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल पाई माइनस थीटा, दिस एंगल -π प्लस थीटा और दिस एंगल माइनस थीटा। सही है क्या? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ो बच्चे, इसे लिखते चलेंगे। वेयर थीटा इज टेकन एज व्हाट? थीटा इज टेकन एज आर्गुमेंट एज ए प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा लेंगे अपने प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में। नाउ बच्चे अब यहाँ से लिखो तो आर्गुमेंट को कैपिटल आप लिखोगे, कैपिटल ए लिखोगे, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हो जाएगा आपका n पाई प्लस थीटा। इट मीन्स n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, ये हो गया आर्गुमेंट। इसलिए आप इसको हाईलाइट कर लोगे, इसको हाईलाइट कर लो बच्चे, जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करोगे, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट आ जा। तो z अपने पास हो गया बच्चे कितना? z अपने पास हो गया x प्लस आई वाई, राइट ना। अब इसे लिखो बच्चे, x को लिखोगे r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे। अब यहाँ से क्या हो गया, r कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। बिल्कुल सही है। दिस इज z, सो z इक्वल्स टू मोड ऑफ z e टू द पावर i थीटा। आप जानते हो, यहाँ से आप जानते हो बच्चे, इसको बोलते हैं यूलर्स रूल। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है? यूलर्स थ्योरम बोलता है बच्चे क्या, देखो तो ये बोलेगा e टू द पावर i थीटा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, राइट। e टू द पावर माइनस आई थीटा, ये बनेगा cos थीटा माइनस i साइन थीटा, राइट। इसको ऐड कर दो बच्चे, इससे ऐड करोगे तो ये साफ हो गया, ऐड करोगे तो साफ हो गया, तो ये हो गया आपका cos थीटा इक्वल्स टू e का पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? e टू द पावर i थीटा e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये हो गया अपने पास दिस वन, ये अपने पास आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके बेटे? सही है ना? ठीक है। यहाँ से सूर्यांश, मान्या, सूर्यांश, चलिए गुड। अब देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे, देखो क्या ये हो गया अपने पास, यूलर्स की बात कर ली बच्चे। अब लिखता हूँ यहाँ से पॉइंट में, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, आज केवल अपन थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है जी। निहारिका, आद्या, अशोका, अर्षया, ठीक है ना। जो जो बच्चे 11th वाले बच्चे हैं, यही टॉपिक जब 12th में या 13 में चलता है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। अभी इस क्लास में केवल थ्योरी चलेगा। अब थ्योरी कमांड हो गया तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। आर्गुमेंट जेड अगर थीटा है तो जेड क्या हो बच्चे? जेड हो जाएगा मोड ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा। इसको आप हाईलाइट कर लोगे, इससे पॉइंट को हाईलाइट कर लो बच्चा, इसको पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे, जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट कर लो बच्चे आप, राइट ना। अब देखते बच्चे क्या नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से क्या करना बच्चे, ये पॉइंट लोगे बच्चा, यहाँ से ऐसे पॉइंट लोगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, नो, चलते बच्चे, इट इज पी ऑफ जेड। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया पी ऑफ जेड, इट इज पी डैश जेड बार, इसको बोलते हैं इमेज ऑफ जेड,
image of z in x-axis, image of z in x-axis. here ये हो गया आपका q, q हो गया माइनस z, ये हो गया बच्चे r, r लिखोगे तो माइनस में z बार, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका इमेज ऑफ z, इमेज ऑफ z इन y एक्सिस, y एक्सिस में इमेज ऑफ z, राइट ना, y एक्सिस में क्या हो गया, इमेज ऑफ z. ठीक है, ठीक है बच्चे, मस्ट हैव कॉपी बेटे, इसका मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे. अब क्या करूँगा, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, सपोज करो पॉइंट इफ z इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, z इज पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब क्या बच्चे, z लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस. if z is negative real number, या आर्गुमेंट z लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर अगर हो, आर्गुमेंट z 0 हो, या z इज नेगेटिव रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, z लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ये रहेगा, z इज दिस वन. ठीक है बच्चे, अब लिखता हूँ बच्चे क्या, इफ आर्गुमेंट z इक्वल्स टू π/2, इट मीन्स z लाइज ऑन y एक्सिस. इसका मतलब हो गया बच्चे, क्या हो गया, z लाइज ऑन y एक्सिस. अब इसी पार्ट को और देखेंगे आगे, इसी पार्ट को और देखो बच्चे आगे, अगर इफ आर्गुमेंट z 0 है, इसका मतलब क्या बच्चे, z लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस. इफ आर्गुमेंट z इक्वल्स टू पाई, इट मीन्स क्या हुआ बच्चा, z लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस. और फिर से यहाँ रहेगा पॉइंट, इफ आर्गुमेंट z इक्वल्स टू π/2 प्लस माइनस π/2, आर्गुमेंट z प्लस माइनस π/2, तो क्या करोगे, z लाइज ऑन y एक्सिस. सही है, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके ना, इज इट ओके टू ऑल. अब बच्चे देखोगे इसका, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट. अब क्या है बच्चे, अब अपने पास देखो तो क्या बनेगा, ये अपने लिखेंगे क्या, यहाँ लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस z. इसकी बात करेंगे तो पहले ही बताया बच्चे कि आर्गुमेंट लॉग के जैसा यूज़ होता है, तो ये क्या करने का, आर्गुमेंट z अपॉन माइनस z है बच्चा, ठीक है ना, माइनस z है बच्चा, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका आर्गुमेंट ऑफ -1. आर्गुमेंट ऑफ -1 का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव हो गया बच्चे, ये कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस तरफ आ गया, सो दिस विल बी पाई, ये हमारे पास हो गया बच्चे पाई. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं बच्चे, आर्गुमेंट ऑफ z. आर्गुमेंट ऑफ z की बात करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z, अब माइनस में लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z बार, आर्गुमेंट ऑफ z बार. तो इसकी बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास z अपॉन z बार. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आपका z स्क्वायर, नीचे हो गया z बार बच्चे. तो देख बच्चे, इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर, माइनस में आर्गुमेंट ऑफ, ये हो गया आपका मोड ऑफ z स्क्वायर. ये पार्ट तो 0 हो गया बच्चे, तो ये हो गया 2 ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z. हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे शिवांश, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके ना. अब नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जा बच्चा, क्या नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं लोकेशन ऑफ. अब लिखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में आओगे लोकेशन ऑफ z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2, कहाँ पे, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लोकेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, अपन करेंगे क्या बच्चे, देखो गौर से। अब यहाँ से एक लाइन खींचा बच्चा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया बच्चे। देखो तो बच्चा क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये। अब अपने पास ये लाइन देखो बच्चे, दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया आपके पास P, ये हो गया Q, ये Z1, ये Z2 बच्चे, कुछ नहीं करना। अब इसको जस्ट ड्रा ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना दे बच्चे। तो इसी के लाइन के पैरेलल खींच दे ऐसे, इसी लाइन के पैरेलल खींच बच्चा, इसके पैरेलल ले लो बच्चे ऐसे। ये बन गया R, ये R बनेगा बच्चे। तो इसको मिलाओगे आप ऐसे ऐसे, ये मिलाओगे तो ये Z2 है बच्चा, तो ये भी Z2 हो गया, ये भी Z2 हो गया बच्चे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया Z2, ये हो गया Z1। तो अपने पास यहाँ हो गया बच्चे OR, तो वेक्टर OR हो गया OP प्लस PR, सही है ना। तो ये अपने पास हो गया Z ऑफ R, तो Z ऑफ R हो गया Z1 प्लस Z2। ये अपने पास बात करेंगे तो ये हो गया बच्चे Z1 प्लस Z2 हो गया, सही है ना। इसको इट गोज डाउनवर्ड बच्चे, इसको डाउनवर्ड ले लो आप, इसको डाउनवर्ड बच्चे ले लोगे आप यहाँ से। इसी लाइन को नीचे लाओ ऐसे, ये नीचे नीचे लाओ बच्चे डाउनवर्ड ऐसे। तो ये लाओगे ऐसे, तो ये हो गया S। अब S लाना है तो क्या करोगे, दिस वन, और ये ऊपर Z2 है तो नीचे हो गया माइनस में Z2 बच्चे। तो ये देखो तो अब क्या करोगे, OS का वैल्यू क्या हो गया, वेक्टर OS हो गया आपका OP अब प्लस PS। तो ये हो गया बच्चे, यहाँ से लिखोगे क्या, Z ऑफ S, OP is Z1 बच्चे, OP Z1 है। माइनस में PS की बात करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस में दिस वन, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चा, देखोगे जस्ट मैच इट बच्चे, मस्ट हैव स्क्रीन शॉट बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीन शॉट। इज इट ओके टू ऑल, राइट सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बच्चा, शिफ्टिंग ऑफ Z along X और Y एक्सिस, X और Y एक्सिस में इसका शिफ्टिंग की बात करोगे तो क्या होगा बच्चे, देखो तो X और Y एक्सिस में शिफ्टिंग की बात करोगे तो देखो बच्चे क्या करना, ये पॉइंट ले लिया बच्चे O ऑफ Z ले लिया। अब आपका डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस हो गया A, इस डिस्टेंस का नाम हो गया बच्चे A। तो ये क्या बन गया, इसको A ले लो Z प्लस A, ये डिस्टेंस हो गया आपका, सेम डायरेक्शन हो गया नेगेटिव में तो ये माइनस है। ये हो गया आपका B, ये हो गया Z माइनस A, ये डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस प्लस में A, प्लस में बच्चे A। तो क्या हो गया आपका Q चाहे C लिख दो, यहाँ पे C लिख दो बच्चा, C लिखोगे तो Z प्लस IA, Z प्लस IA डायरेक्शन Y का, तो I आ गया बच्चे, ठीक है ना। इसकी बात करोगे तो ये D हो गया Z माइनस IA, हाँ या ना, हाँ या ना। कुछ नहीं करने का, इसको ऐड कर बच्चा। अब यहाँ से इसको ऐड कर दो, इससे ऐड कर दो दिस वन, दिस वन, ये इसका वैल्यू हो गया। शिफ्टिंग ऑफ Z अलोंग X एंड Y एक्सिस की बात किया बच्चे, तो ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे लोकेशन ऑफ IZ, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आएगा लोकेशन ऑफ IZ। लोकेशन ऑफ IZ, ठीक है ना, IZ का लोकेशन। तो सिंपल सी बात देखो चे, Z का वैल्यू होता है मोड ऑफ Z ई टू द पावर I थीटा। तो IZ की बात करोगे तो ये क्या हो गया अच्छा, IZ की बात करोगे तो मोड ऑफ Z ई टू द पावर I थीटा इंटू I। तो इस I को काट के लिख दो cos π/2 प्लस I साइन π/2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। cos π/2 0 होता है बच्चा। ये हो गया आपका मोड ऑफ Z ई टू द पावर I थीटा ई टू द पावर π/2I। ये हो क्या गया बच्चा, तो मोड ऑफ Z ई टू द पावर π/2 प्लस थीटा ई टू द पावर π/2 प्लस थीटा ऑफ I, ये हो गया। इसे लिख लो बच्चा, इसे लिख लीजिए बच्चे। परेशानी हो तो बताएंगे, इसमें परेशानी लगे तो बताएंगे इसमें करना क्या है, सही है ना, सही है बच्चे। क्या लिखना पड़ेगा, वेयर I थीटा
है ना, इज एट आई थीटा में 90 डिग्री आ गया बच्चे। एक काम करता हूँ, इसको ऐसे दिखाता हूँ बच्चा, इसको फिगर से दिखा दिया जाए। आई थीटा का सेंस क्या हो गया, ये अपने पास पॉइंट हो गया बच्चे, देखो तो ये पहले से जेड है, पहले से पी ऑफ जेड है बच्चा। अब ये एंगल हमारे पास ऐसे ले आओगे, ऐसे ले आओगे, तो ये बन गया आपका 90, ये बन गया आपके पास π/2, इसको लिख दो π/2। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, ये एंगल जो बनेगा बच्चे, ये जो वैल्यू बनेगा Q, यही हो गया IZ, हाँ या ना। अब इसको ठीक और करते हैं बच्चा, इसको और ठीक करते हैं। अब देखते बच्चा अपन क्या करेंगे, एक सर्किल ले लिया ऐसे। अब लिसन बच्चे क्या करने का, ये पॉइंट हो गया, मुझे ये चाहिए, इसमें 90 हो गया बच्चा, गौर से देखोगे, ये 90 हो गया बच्चा, गौर से देखोगे, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, इसको मान लो Z, ये हो गया, इसमें 90 ऐड करोगे तो क्या हो गया, 90 को π/2 लिख दो, अच्छा रहेगा बच्चे। π/2 ऐड करोगे तो देखो बच्चे, π/2 ऐड करोगे तो ये हो गया IZ, इसमें π/2 फिर से ऐड करो बच्चा, तो ये हो गया आपका I²Z, ये हो गया I²Z, मतलब हो गया माइनस में Z, ठीक है ना। इसकी बात करो बच्चे, तो यहाँ से फिर से π/2 आ गया, तो ये हो गया माइनस में IZ, इसी को लिखते हैं Z बार, इसी को लिखा जाता है Z बार, ठीक है ना। तो ये क्या हो बच्चा, ये हो गया आपका इमेज ऑफ Z, ये हो गया आपका इमेज ऑफ Z, इमेज ऑफ Z इन एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चे क्या, देखो तो गौर से, ये हो गया इमेज ऑफ Z इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में उसका इमेज की बात करोगे तो ये हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, निहारिका, दिव्यांश, शिवांश, इज इट ओके, स्निग्धा, आर यू ओके ऑल, सही बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। तो ये अपने पास कंडीशन अपने पास ऐसे आ गया बच्चा, तो मैं फिर भी लिखूंगा बच्चे, आई थीटा है क्या, आई थीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ लिख बच्चे, where I theta is a complex number with same absolute value, with same absolute value and π/2 प्लस थीटा की बात करेंगे, इज π/2 प्लस थीटा, मतलब आर्गुमेंट की बात करेंगे, एंड आर्गुमेंट π/2 प्लस थीटा एंड आर्गुमेंट π/2 प्लस थीटा इज या represents a rotation थ्रू 90 डिग्री, हाँ या ना, सही है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, कन्फ्यूजन हो तो पूछेंगे, टोकेंगे, बच्चे बताएंगे, सही है ना सबका। तो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैं, नेक्स्ट आ जा बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या लिखो, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट सारा स्टार पॉइंट है थ्योरी का, कोई लाइन ऐसे है बच्चे, देखो तो ये पॉइंट अपने पास हो गया P, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है बच्चे, ठीक करो इसे आप, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q बच्चा, ये लिखोगे लाइन आपके पास डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। ये बन गया O, ये हो गया Z1, ये बन गया आपका Z2। तो देखो बच्चे मुझे चाहिए PQ चाहिए, तो PQ चाहिए वेक्टर PQ, तो Q में से P घटाते हैं आप, तो आप लिखते क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो देखो बच्चे मुझे तो PQ का डिस्टेंस वैल्यू चाहिए बच्चा, तो ये हो गया आपका Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, PQ चाहिए ऐसे, तो हमेशा फाइनल से इनिशियल घटाएंगे, हमेशा फाइनल से इनिशियल घटाएंगे बच्चे। कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो तो वही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हाँ या ना। जो कोऑर्डिनेट में आता था सब यहाँ सेम आएगा बच्चे, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया PQ। अब मुझे इसका एंगल चाहिए अल्फ़ा मान लोगे, तो अल्फ़ा क्या हो गया, तो
अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा मीन्स आर्गूमेंट, आर्गूमेंट हो गया आपका Z2 माइनस Z1, ये हो गया इसका आर्गूमेंट बच्चे। अब मुझे चाहिए, देखो तो क्या मुझे चाहिए बच्चा, ये एंगल हो गया अपने पास, हमने कहा ये एंगल हो गया θ1 और ये टोटल एंगल हो गया θ2 और बीच का एंगल हो गया थीटा, तो मुझे थीटा चाहिए बच्चा, मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो गया, थीटा अपने पास हो जाएगा θ2 माइनस θ1। θ2 कितना बच्चे, तो θ2 हो गया आर्गूमेंट ऑफ Z2 एंड आर्गूमेंट ऑफ Z1। इसको ठीक से देखना, तो ये थीटा हो गया बच्चे आर्गूमेंट का बिहेवियर लॉग के जैसा, आर्गूमेंट का बिहेवियर लॉग के जैसा बच्चे। तो ये अपने पास जब भी इसकी बात करोगे, इस एंगल की बात करोगे, तो एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से हमेशा डायरेक्शन उल्टा चले, ऐसे चलेगा बच्चे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्शन ये चला, ऐसे चला, तो यहाँ हो गया Z2 माइनस जीरो है ना अपॉन Z1 माइनस जीरो, ये कंडीशन आ गया बच्चे। तो ये अपने पास इसका आर्गूमेंट आ गया, लिखिएगा हाँ या ना, सही है क्या, सही है ना। अब इसमें मैं आता हूँ रोटेशन। अगर अच्छा इसको चेंज भी करना चाहे तो इसको चेंज करना चाहोगे कि आर्गूमेंट उल्टा लिखेंगे, Z1 बाई Z2 लिखेंगे, ये बन जाएगा आपका 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो गया, सही है। नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आते हैं रोटेशन, नेक्स्ट अपन आते हैं रोटेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन, यहाँ से जो हाईफाई और क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, वैसे तो सारा थ्योरी चाहिए बट ये उसका मेन पार्ट है बच्चा। तो देखते हो रोटेशन में अपन क्या बोलेंगे, ये ऐसे ले लिया हमने, ऐसे दिस वन एक्स और वाई एक्सिस, दिस ये हो गया A Z1 B Z2 C Z3, देख तो अच्छा डॉट 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 दिस वन एंड दिस वन, ऐसे लो बच्चे, इसको लोगे θ1, इससे ले लो θ2, इससे ले लो θ2, इससे ले लो θ1, ऐसे लो बच्चे, बिल्कुल सही है ना। अब कुछ नहीं करने का, अपन को A चाहिए, एंगल ये चाहिए बच्चा, एंगल ये चाहिए, तो कैसे होगा, इसको थीटा मान लो या ये मान लो। एंगल A की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका θ1 माइनस θ2, θ1 है क्या बच्चा, तो θ1 अपने पास है Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1, ऐसे हमेशा उल्टा चलेंगे, ऐसे Z3 माइनस Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ θ2 की बात करो बच्चा, तो θ2 कहाँ है, θ2 हो गया Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, तो ये बन क्या गया बच्चा, एंगल A की बात करोगे तो ये हो गया आर्गूमेंट Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1, सही है ना, सही है बच्चा। ये कंडीशन हो गया, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, आपके पास तरीका क्या है ये देखोगे, आपके पास तरीका क्या है ये देखोगे, ठीक है ना। देखो बच्चे, आपको क्या करने का, आपको A चाहिए तो ये लाइन ऐसे उठाओ बच्चा, आपको A चाहिए तो ये लाइन ऐसे उठाओगे, ऐसे एंगल A चाहिए तो ये हो गया आपका आर्गूमेंट, आर्गूमेंट इससे घटा सब्ट्रैक्ट कर बच्चा, इससे सब्ट्रैक्ट कर, तो ये हो गया Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, सही है ना। एंगल B की बात करोगे, एंगल B की बात करोगे तो देख बच्चा B क्या हुआ, B ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया Z1 माइनस Z2, तो ये हो गया आर्गूमेंट Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z2, सही है, Z3 माइनस Z2। एंगल C की बात करो बच्चे, तो एंगल C में क्या करोगे, आर्गूमेंट चेक कर बच्चा, जैसी उसकी बात करोगे तो ये अपने पास आया एंगल C, ऐसे लाओगे तो ये हो गया आपके पास Z2 Z3, तो Z2 माइनस Z3 एंड अपॉन Z1 माइनस Z3, ये आंसर होगा हाँ या ना, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 है ना, दिस इज द एंगल बच्चे, यही रोटेशन हो गया। ये तीनों पार्ट को बढ़िया से देखोगे, इसे हाईलाइट कर बच्चा, इसे हाईलाइट कर बच्चा, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, है ना। इसमें कहीं परेशानी हो तो दोबारा बोलेंगे बच्चे, सही है क्या। देखो बच्चे, अब इसके लिए भाई दे पूछ रहा है बच्चा कि कैसे होगा, कुछ नहीं करने का, मुझे B चाहिए बच्चा, तो B चाहिए तो ये निकालोगे ऐसे, B चाहिए तो ऐसे निकालो बच्चा, तो ये Z2 है, A ऑफ Z1 है, C ऑफ Z3 है बच्चा। B की बात करोगे तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट, ठीक है ना,
उल्टा चलेंगे A1 Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z2, ये अपने पास B हो गया। चेक करो है कि नहीं, देखो तो B में वही है ना, आर्गूमेंट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, सही है क्या? सही है बच्चा, ये अपने पास आ गया दिस वन। अब इसके कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके कंसेप्ट से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करते हैं, सर्किल का क्वेश्चन लाते हैं, या बहुत सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट देखो तो क्या करेंगे। अब यहाँ तक जब हो गया तो स्ट्रेट लाइन सर्किल करने से पहले अपन चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑन आर्गूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑन कंजुगेट, इसकी बात करेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट कर लिया ना, नोट कर लिया। इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेता हूँ बच्चे, इस पर एक क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, ऐसे अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन देखता हूँ अपन, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे ऐसे ही। अपन लिखते बच्चे यहाँ से ये लिख दिया, ये हो गया A Z1 B Z2 C Z3, ये रहेगा बच्चे इन ए गिवन ट्रायंगल ABC which will be prove that triangle is equilateral, prove that triangle is equilateral if Z1 square plus Z2 square Z1 cube plus Z2 cube plus Z3 cube equals to 3 Z1 Z2 Z3। ये आ जाओ बच्चे नंबर फर्स्ट। सेकेंड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये रहेगा, ये कैसे आएगा बच्चे, देखो तो आएगा क्या, आएगा क्या? कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो सबसे अच्छा तरीका इसे लाने का अपन लोग कैसे लाएंगे बच्चे, यहां से अपन लोग कैसे लाएंगे। चलते बच्चे यहाँ से लिखता हूँ मैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट लिखता हूँ बच्चे A बराबर आर्गूमेंट B, ये लिख दिया बच्चे एंगल A बराबर एंगल B लिख दिया बच्चे। तो देखो तो क्या हो गया, ये बनेगा आर्गूमेंट, इसकी बात करोगे तो उसका उल्टा लाओगे, ये हो गया Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट। इसकी बात करोगे तो ये हो गया Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 दिस वन। आर्गूमेंट दोनों को हटा सकते हैं आप, दोनों आर्गूमेंट हटा दिए बच्चा, इट विल बी फाइनली अपियर Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, दिस इज Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z2। अब यहाँ से ठीक है बच्चा, देख तो बच्चे क्या हो गया, Z3 माइनस Z1 एंड Z3 माइनस Z2, राइट। ये क्या हो गया बच्चे, माइनस में Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, इसे ठीक करो बच्चा, तो ये क्या बन गया, देखो तो ये बन जाएगा अपने पास, देखो तो बच्चा क्या, ये बन गया आपका Z3 स्क्वायर माइनस में Z1 Z3 माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2। ऐसे बच्चे तो कुछ है क्या, चेक करो तो ये पार्ट इससे 2 से कट जाएगा, तो बन क्या गया बच्चा, तो बन गया आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, हाँ या ना, ये इसका आंसर हो गया बच्चे। इसका आंसर जब हो गया तो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और बात भी बन सकता। आगे बढ़ते बच्चे तो इसको लिखते हैं, ट्वाइस लगाते हैं, ट्वाइस ऑफ Z1 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ Z2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ Z3 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ Z1 Z2 2 ऑफ Z2 Z3 2 ऑफ Z1 Z3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया बच्चे क्या, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर Z3 माइनस Z1 होल स्क्वायर
इक्वल्स टू 0, ये आंसर हो गया आपके पास, बोलिए हाँ या ना। अब ये केस जहाँ तक फर्स्ट केस है बच्चा, फर्स्ट केस से सेकंड केस तो आ जाता, लेकिन सेकंड केस से फर्स्ट केस नहीं आएगा जब तक कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 नहीं दिया रहे। अगर वो दिया रहेगा तो अपने पास फर्स्ट भी आएगा बच्चे, वो दिया रहेगा बच्चे तो फर्स्ट भी आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो अपने पास देख बच्चे क्या रहा अपने पास, दिस वन, ये कंडीशन हो गया। अब यहां से दिस, ये होने का सेंस हो गया बच्चे Z1 बराबर Z2 बराबर Z3, ये कंडीशन आ गया। और जब मॉडुलस इसकी बात करेंगे तो एक रास्ता और निकालते हैं बच्चा, एक रास्ता और निकालते हैं, एक रास्ता और निकालते हैं, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1, इसका मॉडल वैल्यू लेंगे, ये तीनों बराबर होगा बच्चे, हाँ या ना। स्क्वायर करके फिर इसको ठीक कर सकते हैं आप। तो ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया बच्चे, इससे हटा दीजिए फिलहाल, इससे फिलहाल हटा दीजिए, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है ना। उसको करेंगे उस तरह क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कंडीशन आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को 0, तो कंडीशन प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑन कंजुगेट। देखिए अब आपका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या अपने पास बच्चे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑन कंजुगेट। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चे, तो देख तो अच्छा क्या करना, यहाँ से ये बोलता है Z वार का होल वार इट विल बी Z नंबर 1, ठीक है ना। मोड ऑफ Z इक्वल्स टू मोड ऑफ Z वार, मोड ऑफ माइनस Z इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस Z वार, सारा वैल्यू सेम है बच्चा, ये सारा वैल्यू सेम है। अब यहाँ से लिखो चे थर्ड नंबर में, थर्ड बच्चे देखो तो क्या करना, अगर Z प्लस Z वार है तो ये बनेगा आपका 2x, तो ये हो गया 2x का मतलब हो गया R मोड ऑफ Z cos थीटा, सो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z, ठीक है ना। x होता है आपके पास R cos थीटा, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है बच्चे, ऐसे लिखोगे, ये हो गया बच्चे क्या, ये हो गया आपका रियल ऑफ दिस, तो क्या करो बच्चे, तो रियल ऑफ Z का इसको लिखो ऐसे बच्चे, ये लिखोगे Z प्लस Z बार, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z, ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z लिखिए बच्चे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर Z माइनस Z बार, तो ये हो गया आपका 2IY, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ I ऑफ इमेजनरी ऑफ Z, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ I ऑफ इमेजनरी ऑफ Z, सही है बच्चे। नेक्स्ट देखो तो साइन थीटा लिख सकते थे आप लिख सकते थे 2I साइन थीटा, 2I साइन थीटा, ठीक है ना। y हो गया r साइन 2I, अरे यार 2I नहीं, 2I के साथ साथ मोडलस भी लगेगा, 2 ऑफ मोड ऑफ Z I साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ से अब लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, इफ Z इक्वल्स टू Z बार, ऐसा लिखोगे तो इसका मतलब x x कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2y 0, इसका मतलब बच्चे y 0 हो गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट Z इज प्योरली रियल, इसका मतलब है बच्चा Z इज प्योरली रियल, हाँ या ना। अगर ऐसा रहे बच्चा Z इक्वल्स टू माइनस Z बार, कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो क्या करोगे, x x कैंसिल, क्या हो गया बच्चा, ये बन गया 2x, बाकी कट जाएगा बच्चे, तो ये हो गया 2x बराबर 0, इसका मतलब हो गया बच्चे क्या, x 0 हो गया, सो Z इज प्योरली इमेजनरी, Z क्या है बच्चा, प्योरली इमेजनरी हो गया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए बच्चे हाँ या ना। तो Z क्या हो बच्चे, प्योरली इमेजनरी हो गया, राइट। अब देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आ जाओगे 6 नंबर में, 6 नंबर पॉइंट देखो बच्चे क्या करने का। अब यहाँ लिखता हूँ मैं Z बार इक्वल्स टू वही मोड ऑफ Z स्क्वायर है बच्चा, और वही मोड ऑफ Z बार का स्क्वायर भी है, सारा वैल्यू सेम है।
अब मैं लिखता हूँ Z1 इन प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट डॉट प्लस Zn होल का कंजुगेट है। इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ Zi का कंजुगेट, जहाँ आई का वैल्यू यहाँ 1 to n हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। अब ऐसे रहेगा Z1 बाय Z2 होल कंजुगेट, ये हो गया Z1 कंजुगेट बाय Z2 कंजुगेट, ऐसे लिख सकते थे आप, ऐसे लिख सकते थे 7 नंबर, ये हो गया आपका 8 नंबर एंड सो ऑन बच्चे। अब यहाँ से देखते बच्चा क्या किया, अब लिखो तो इफ एफ जेड बराबर ए प्लस बी जेड है तो क्या करना बच्चा, एफ जेड वार अगर है तो ये हो गया बी प्लस ए प्लस बी जेड वार, ये लिख दो बच्चा। अगेन आपके पास ऐसा रहेगा इफ एफ जेड की बात करोगे तो ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड ए टू जेड ए वन जेड जेड वन ए टू जेड टू ए थ्री जेड थ्री डॉट 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 ए एन जेड एन, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे एफ जेड वार की बात करोगे तो जहाँ जहाँ जेड दिखे वहाँ जेड वार लिख दो बच्चा। दिस वन ए वन जेड वन वार प्लस ए टू जेड टू वार प्लस डॉट 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 प्लस ए एन जेड एन वार, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है बच्चा, क्या सबका सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑन, क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑन कंजुगेट था ना, ये अपने पास क्या लिखा था हमने, प्रॉपर्टीज ऑन कंजुगेट। अब आते बच्चे प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, आ जाओ बच्चा नेक्स्ट आ जा प्रॉपर्टीज ऑन प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में स्पेशली जो है स्मॉल से लिखा जाता है, बट चलो भाई आपके सिलेबस में स्मॉल कैपिटल से मतलब नहीं है तो लिख सकते बच्चे आप, आपके सिलेबस में उससे नहीं मतलब बच्चे इसलिए लिख सकते हैं आप। तो यहाँ देखता हूँ मैं प्रॉपर्टीज ऑन आर्गुमेंट में क्या करेंगे, तो देखो बच्चे क्या लिखोगे, इट बिहेव लाइक मॉडुलस। आर्गुमेंट का बिहेवियर मॉडुलस से जैसा होता है। तो यहाँ देखो बच्चे क्या लिखूँगा मैं, आर्गुमेंट Z1 Z2 राइट ना, आर्गुमेंट Z1 Z2 ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, ठीक है ना। एंड अगेन आर्गुमेंट Z1 Z2 Z3 Zn, ये हो गया बच्चे समेशन ऑफ आर्गुमेंट Zi जा वेयर i इक्वल्स टू 1 to n, लिख सकते हैं क्या ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सम में ऐसे हो गया बच्चे, प्रोडक्ट में ये हो गया। और देख बच्चे अब इसकी बात करोगे आर्गुमेंट आपका Z1 बाई Z2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चे नेक्स्ट आ जाओ आर्गुमेंट Z का पावर n, ये हो जाएगा n आर्गुमेंट Z, n आर्गुमेंट Z, सही है। अब लिखो तो बच्चे इफ आर्गुमेंट 0, इसका मतलब बच्चे क्या हो गया, आर्गुमेंट 0 है बच्चे, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो नो ऐसे लिखोगे, इसको हटा दो बच्चे, इसको हटाओ बच्चे। अभी आर्गुमेंट में लिखोगे मोड ऑफ Z, ये हो जाएगा 0। इफ क्या, ये तो कंडीशन में आया बच्चा, कंडीशन में आ गया, ये भी ये सारे कंडीशन है बच्चे। आर्गुमेंट मोडलेस Z का मतलब हो गया बच्चे, देखो तो tan इनवर्स आर्गुमेंट होता है, tan इनवर्स ये होता है y बाई एक्स, y तो इसमें है ही नहीं बच्चा, तो y के प्लेस पे 0, ix के प्लेस पे हो गया मोड ऑफ Z, आंसर हो गया 0, ठीक है ना। अब लिखोगे क्या नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, आर्गुमेंट Z वार या आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z वार, ये रहेगा तो क्या हो गया, ये हो गया आर्गुमेंट Z वार, ये हो गया आर्गुमेंट, ये हो गया मोड ऑफ Z स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, सही है। यहाँ से लिखो बच्चे आर्गुमेंट Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z वार, इसे ठीक करो बच्चे, तो ये लिखोगे तो ये हो गया अपने पास Z अपॉन Z वार, ये ठीक करोगे तो Z वार, ठीक है, नो ये हो गया अपने पास Z, ऊपर हो गया Z स्क्वायर, ऊपर हो गया Z स्क्वायर,
नीचे हो गया जेड जेड बार, ठीक है ना। तो देख बच्चे क्या बना, ये बन गया आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये ऊपर आ गया बच्चे 2 ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस 0, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ मोड ऑफ जेड 0 होता है, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल? इसे लिखते चलिए बिल्कुल बच्चे, इसको बिल्कुल बिल्कुल लिखते चलिए आप। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखो तो क्या करोगे अब देखो बच्चे क्या लिखूंगा मैं, कुछ कंडीशन लिखता हूँ बच्चा। इफ आर्गूमेंट जेड 0, इसका मतलब जेड कहाँ बच्चे, इसका मतलब हो गया जेड इज रियल पॉजिटिव, जेड इज रियल पॉजिटिव। आर्गूमेंट जेड पाई, ये हो गया जेड इज क्या बच्चे, जेड लाइज ऑन नेगेटिव एक्सिस लिख सकते थे आप, जेड इज रियल नेगेटिव बोलो, रियल नेगेटिव, और जेड लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस ये बोल सकते हैं बच्चा। आर्गुमेंट जेड अगर पाई बाय 2 है तो क्या बोलोगे, इसका मतलब बच्चे जेड इज प्योरली जेड लाइज ऑन वाई एक्सिस। इसका मीनिंग निकला बच्चे जेड हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बोलिए हाँ या ना, सही है सबका, सही है बच्चे। तो लिखते चलो इसे, आप इसे लिखते चलिए। देखिए आपने क्या किया। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में देखो बच्चा, सिंपली बात करोगे x प्लस वाई अगर है सो दिस विल बी लेस दैन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, ये लिखोगे आप। अब यहाँ से देखो बच्चा इक्वालिटी साइन होल्ड करेगा कब, इक्वालिटी साइन होल्ड्स इफ x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो बच्चे, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चे कि इक्वलिटी साइन होल्ड होगा। तो इक्वलिटी साइन होल्ड होगा तो दोनों का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव होगा, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, हाँ या ना। इन दिस केस आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अब इसको ठीक कर बच्चे, ऐसे ही यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x मोड ऑफ y, मोड ऑफ x मोड ऑफ y। अब यहाँ क्या करना बच्चे, तो इसको ऐसा लिखता हूँ मैं x माइनस वाई, यहाँ लिखता हूँ बच्चे देखो तो ये लिखता हूँ मैं x माइनस वाई प्लस मोड ऑफ y दिस बिगर देन इक्वल टू मोड ऑफ x। तो यहाँ से क्या हो बच्चे, इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी कहाँ होल्ड होगा बच्चा, इक्वालिटी साइन होल्ड्स if x minus y into y greater than 0, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही कंडीशन में होल्ड होगा बच्चे। तो अब यहाँ से मैं एक लिखता हूँ बच्चे, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा इट विल बी ऑलवेज लेस दैन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y प्लस मोड ऑफ z, सही है ना, सही बच्चे। अब इसको लिखता हूँ बच्चे इस कंडीशन में। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे देखो तो मोड ऑफ z इक्वल्स टू मोड ऑफ z बार इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ z इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ z बार बच्चे। कंडीशन नंबर 1 ये हो गया, नंबर 1 बच्चा। ये नंबर 2 में आ जाइए। नंबर 2 में देखो बच्चे क्या करना, अब यहाँ से z1 प्लस z2 लेस दैन मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। किसी क्वेश्चन में मैक्स में निकालना हो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब किसी क्वेश्चन में निकालना हो कि वाई मुझे z मैक्स निकालो बच्चा, तो मैक्स में निकालने का चक्कर हो तो ये लगा सकते, और वो मेंस वाले में आता है क्वेश्चन वैसा, ठीक है ना। तो देखो बच्चे इसी में लिखता हूँ मैं थर्ड नंबर में z1 प्लस z2 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn, it will be always less than z1 mod z2 mod z3 mod zn। ये कंडीशन आ गया, सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे क्या करोगे, अब यहाँ से
मोड में Z1 माइनस Z2, दिस बच्चे दिस इज बिगर दैन मोड Z1 माइनस मोड Z2। अब यहाँ से कंपेयर कर बच्चा, तो मोड Z1 डिफरेंस मोड Z2, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस Z2, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस Z2, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। हाँ या ना? जब मैक्स में निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो ये आप यूज़ करना, मैक्स में जब भी निकालना हो किसी क्वेश्चन में इसे यूज़ कर लेना, हाँ या ना? इसे लिखिए बच्चे, लिखते चलिए आप। सही है, इज इट ओके टू ऑल? अब देखो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आता हो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हो बच्चे 5 नंबर में, नेक्स्ट पॉइंट आता हो बच्चे 5 नंबर में। अब देखो बच्चे क्या करने का, अब यहाँ लिखता हो बच्चे, क्या देखोगे, मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू 0। अब सिंपल बात करूँगा, माइनस मॉडुलस ऑफ z इज लेस दैन रियल ऑफ z, इट इज़ लेस दैन मोड ऑफ z। सही है ना? तो मोड ऑफ z इज लेस दैन इमेजनरी ऑफ z, यहाँ हो गया इमेजनरी ऑफ z, दिस वन। इसे ठीक कर बच्चा, ये हो गया आपका 5 नंबर। नेक्स्ट बोलेंगे क्या, नेक्स्ट बोलेंगे बच्चे, देखो क्या बनेगा अब आपका। सही है सबका? नेक्स्ट बच्चे देखो, तो अब यहाँ से बच्चे लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, ये लिखूंगा बच्चे Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। इसकी बात करेंगे बच्चे तो क्या बनेगा, ये हो गया Z1 प्लस Z2, और Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट ये हो गया। तो देख तो बच्चा क्या हो गया, इसके साथ हो गया मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, इसके साथ हो गया मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये हो गया आपका Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 Z2 बार। दिस वन बच्चे ऐसे आया, तो देखो बच्चे अब यहाँ से ठीक करना, तो यहाँ से क्या बन गया बच्चा, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, प्लस इसको लिखोगे तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 बार। इसी को लिखा जाता है ऐसे, इसी को लिखा जाता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ Z स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर, और ये हो गया बच्चा ट्वाइस ऑफ Z1 Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2, ये वैल्यू हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बच्चे? लिखते चलेंगे आप, लिखते चलेंगे। हाँ पता है बच्चे, थ्योरी चल रहा है केवल, आज मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा आएगा बच्चे, थ्योरी कमांड रहेगा ना, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। सौर्य बोल रहा है मज़ा नहीं आ रहा, थ्योरी चल रहा है केवल। तो बिना थ्योरी के कैसे आगे बढ़ोगे बच्चा, मुझे बताओ, बिना थ्योरी कैसे आगे बढ़ोगे? अब देख बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ बच्चा। अब लिखोगे Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, दिस वन। ये हो गया बच्चे। अब लिखोगे AZ1 प्लस BZ2 दिस वन होल स्क्वायर प्लस AZ2 माइनस BZ1 होल स्क्वायर। हमने केवल इंटरचेंज किया है नंबर्स को, ए बी को इंटरचेंज किया बच्चे, ऐसे रखा है। तो ये अपने पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसी पैटर्न पे जो ऐसे भी लाए थे आप। तो ये हो गया मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये अपने पास इसका वैल्यू आ गया। अब आना है बच्चे मिक्स प्रॉपर्टी में, अब अपने पास आना है बच्चे मिक्स प्रॉपर्टी में। अब मज़ा क्या आएगा, इसका जो मिक्स प्रॉपर्टी है वो देखो कितना मज़ा आएगा बच्चे। अब लिखता हूँ मैं मिक्स प्रॉपर्टी, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। ये काम का ज़्यादा है बच्चे, है ना? ये आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चे। तो देखो तो क्या करेगा, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये हो गया नंबर 1। बताओ बच्चे मैं क्या करूंगा? अगर ऐसा रहेगा बच्चे तो क्या हो गया बच्चे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर है बच्चे। इसका मतलब हो गया राइट एंगल है, इसका मतलब हो गया Z1 बाय Z2 की बात करेगा, दिस वन इट विल बी π/2। बोलो हाँ या ना? ये हो गया अपने पास एक ऐसे बच्चा Z1 ये Z2, इसका रिजल्टेंट हो गया ऐसे।
तो दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चा, सो इट विल बी राइट एंगल ओनली। सही है ना। अब देखो बच्चे, अब इसको दूसरा लिखता हूँ बच्चे फिर से। अब अगर ऐसा रहेगा तो z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। अब देख बच्चे क्या हो गया, ये तो लगता है कोलिनियर हो रहा है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, ये एक साथ हो गया। इसका मतलब हो गया बच्चे कि आर्गुमेंट जो पार्ट हमारा है z1 बाई z2 की बात करेंगे, ये बन गया 0, ये बन गया 0, हाँ या ना, ये बन गया 0। यहाँ हो गया आपका z1, इसकी बात, ये हो गया आपका z2, इसकी बात करोगे तो टोटल हो गया आपका z1 प्लस z2। सही है, इसे लिखते ही चलिए बच्चा। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आते हैं, मोड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। तो क्या करोगे, अगर ऐसा रहेगा तो वेक्टर में आपको याद होगा मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी, इट मीन्स ए डॉट बी 0। इसका मतलब हो गया बच्चे आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 मस्ट बी पाई बाय 2। ये आपका पाई बाय 2 हो गया, हाँ या ना, ये हो गया बच्चे पाई बाय 2 हो गया बच्चे। अब इसी को लिखोगे ऐसे, अब लिखो बच्चे z1 प्लस z2, z1 डिफरेंस z2, ये रहेगा बच्चे। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, दिस इक्वल्स टू पाई, ये हो गया दिस इक्वल्स टू पाई, हाँ या ना। सही है बच्चा, इज इट ओके टू ऑल। परेशानी है तो बताएंगे आप। इज इट ओके बेटा। अब आते हैं अपन रोटेशन में, अब अपन आगे रोटेशन। ठीक बच्चे, अब देख बच्चे क्या करने का। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे ऐसे रहेगा, लाइन अपने पास, ये लाइन हो गया अपने पास क्या, ये हो गया अपने पास ए बी, ये हो गया सी डी, आपको ये एंगल चाहिए बच्चे तो क्या करोगे, ये एंगल चाहिए मतलब ये चाहिए बच्चा, तो इसको ऐसे निकालोगे तो आपको चाहिए थीटा। थीटा इक्वल्स टू हो गया आर्गुमेंट क्या बच्चे, z3 माइनस z4 अपॉन z2 माइनस z1 इफ। अब देखते बच्चे क्या करोगे यहाँ से, अगर थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 0 हो गया बच्चे, इसका मतलब क्या बच्चे, थीटा 0 होने का मतलब ए बी सी डी कॉन्साइड, ए बी एंड सी डी कॉन्साइड्स, कॉन्साइड बच्चे। अगर थीटा हमारे पास पाई हो गया, इसका मतलब हो गया ए बी, क्या करो बच्चा, ए बी पैरेलल टू सी डी। इफ थीटा पाई बाय 2 हो गया बच्चे, इट मीन्स हो गया ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। बोलिए हाँ या ना, ये कंडीशन आया बच्चे। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट आ गया इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। इसलिए पहले कहा बच्चे कि बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बात नहीं बनेगी। अब देखिए कोई लाइन हमारे पास ऐसे है बच्चा, ये लाइन होगी, पॉइंट हो गया ए z1, ये पॉइंट हो गया बी z2, बाइसेक्ट करने का पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बाइसेक्ट किया बच्चा, तो ये हो गया दिस, इसको क्यू मान लो, तो ये बाइसेक्टर हो गया बच्चा। देखो तो बाइसेक्टर हो गया तो कुछ नहीं करने का, तो यहाँ से लिखोगे z माइनस z1 इक्वल्स टू z माइनस z2। सो दिस इज द which is the equation of perpendicular bisector, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ये लाइन का क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। इसे नोट करो बच्चा, इसे नोट करो बच्चे, क्या लिखा आपने। फिर लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। यहाँ से अपन बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, सबकी बात करेंगे। इज इट ओके टू ऑल। सही है बच्चा। तो थ्योरी आप यहाँ तक छोड़ दे बच्चे, थ्योरी बात यहीं तक छोड़ दूँ मैं, सही है ना। तो नेक्स्ट डे बच्चे अभी थ्योरी में एक पार्ट और, 2 पार्ट थ्योरी चलेगा तो मज़ा आएगा। तो थ्योरी में एक पार्ट और चलेंगे। सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे।